Hello, students, and welcome back to this beautiful chapter of thermodynamics. Till now, we have discussed enthalpy. We have seen what is enthalpy. We have seen numericals based on enthalpy. Of course, usse pehle we were also done with the first law of thermodynamics. We were done with work done under different conditions, maximum work. All these concepts are done. Today, we are going to talk about a very important and a mighty interesting concept called spontaneity. Okay, today we are going to talk about spontaneity. Now, when we talk about spontaneity, or rather, when we talk about a spontaneous or a non-spontaneous reaction, okay, there's this misconception about spontaneous or non-spontaneous reaction. अगर हम किसी से भी पूछते हैं कि what is a spontaneous reaction, तो the most common answer that we normally get is a reaction which happens very fast, instantaneously. ऐसा रिएक्शन जो फटाफट हो जाता है उसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, बट दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. Spontaneous reaction does not mean a reaction which happens fast. It's basically a process which happens on its own without any external influence. कोई ऐसा प्रोसेस जो खुद से हो सकता है. So a spontaneous reaction is a process which takes place on its own without any external influence. बाहर से उसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ती. It can take place on its own. Whereas non-spontaneous reaction जो होता है, it is a process which does not take place without external influence. यानी कि इस प्रोसेस में, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, हमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देने की जरूरत पड़ती है. हमें बाहर से धक्का मारना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो रिएक्शन होगा. दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. रिमेंबर, यहां पर हम स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स. यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट whether or not the reaction can take place on its own. Okay, these are some of the features of spontaneous reaction. सबसे पहले, it is unidirectional and hence it is irreversible. सबसे पहले ये पॉइंट आता है. I'll give you a very simple example. एक मैं आपको spontaneous process का example दे देता हूं so that you will understand this point beautifully. Let's consider water falling down a waterfall. ठीक है, वाटर जो है वो एक वाटरफॉल से नीचे गिर रहा है, अपने आप गिर रहा है, मुझे उसको नीचे फेंकने की जरूरत नहीं पड़ रही है. आई डोंट नीड टू थ्रो इट, इट्स ऑटोमेटिकली फॉलिंग डाउन. इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. बिकॉज इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट्स यूनिडायरेक्शनल. दिस वाटर इज फॉलिंग डाउन. ओके, इट इज इरिवर्सिबल. हां, अगर इस वाटर को मैं नीचे से ऊपर फेंक दूं, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में फिर मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी. It will not remain spontaneous anymore, then it will become non-spontaneous. तो जो spontaneous reaction होता है, that is unidirectional. Okay? Another thing that you need to remember is that ये जो process होता है, it is not concerned about the speed, about the rate. ये बात मैंने सबसे पहले ही clear कर दी थी. Here we are not talking about the rate, the speed. वो fast होता है, slow होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. वो प्रोसेस अपने आप होना चाहिए. ओके, स्पीड यानी कि जो रेट है वो हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में. स्पॉन्टेनिटी का उससे कोई लेना देना नहीं है. ओके, दिस प्रोसेस प्रोसीड्स टिल इक्विलिब्रियम. एंड ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर कि ये जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं. एक वाटर का तो मैंने एग्जांपल दे ही दिया है. Also, there are so many different other examples. Processes which happen naturally, they are all spontaneous processes. इन सब में मुझे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो वो naturally हो रहे हैं. Alright, इसीलिए तो वो spontaneous है. So I hope the concept of spontaneity and non-spontaneity is clear to all of you. अब ये जो spontaneity है, हमारे अंदर पहले से ही इसको लेके काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहा है. वी हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन स्पॉन्टेनिटी. हम चाहते हैं कि चीजें अपने आप हों, इसीलिए हमने स्टीम इंजन बनाया, इसीलिए हमने कैलकुलेटर की इन्वेंशन की. जो भी हमने इन्वेंट किया है हमने इसीलिए किया है बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि कब कोई चीज अपने आप हो जाती है, हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए.
ऑलराइट, तो नेचुरली हमने स्पॉन्टेनिटी को पढ़ने की कोशिश की और हमें ऐसा लगा, वी थॉट दैट स्पॉन्टेनिटी इज रिलेटेड टू एंथैल्पी. Okay, we thought that spontaneity is related to enthalpy. हमें ऐसा लगने लगा कि spontaneous process वो होता है जिसमें डेल्टा H नेगेटिव होता है, यानी कि exothermic process. We thought that any exothermic process where heat is being evolved, liberated, जहां पर हम हीट को बाहर फेंक रहे हैं, हम नहीं, सिस्टम, ओके, जहां पर सिस्टम हीट को बाहर फेंक रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो स्पॉन्टेनियस होगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होगा जहां पर डेल्टा H पॉजिटिव है, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस. ऐसा हमें लगा, बिकॉज हमको ऐसा लगा कि अगर किसी प्रोसेस में, किसी सिस्टम में वो कैपेसिटी है कि एनर्जी को बाहर फेंके, तो वो आगे बढ़ सकता है. इट्स जस्ट लाइक, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं पार्टी कर सकता हूं, है ना. उसी तरह से अगर मेरे पास एनर्जी है तो उस एनर्जी को उड़ा के बाहर एक्सोथर्मिक बनके प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है. दिस वाज द लॉजिक. ओके, वी थॉट इस तरह से एंथैल्पी और स्पॉन्टेनिटी आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. बिकॉज अगर आप वार्म क्लाइमेट लेते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. यानी कि अगर वार्म क्लाइमेट हम लेते हैं और उसमें बर्फ को रखते हैं, सो दैट आइस gets converted to water spontaneously. I don't have to do anything. That ice automatically gets converted into water. How does ice get converted into water? By absorbing heat. Heat को absorb करके वो water में convert हो जाता है. Now this process is endothermic, यानी कि delta H जो है यहां पर positive है, endothermic process है ये, लेकिन फिर भी ये अपने आप हो रहा है. हमें क्या लगा था कि endothermic process जो है वो तो non spontaneous होगा, लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो अपने आप हो रहा है. ओके, सो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. यहां से एक चीज साफ हो गई कि जो हमारा कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू एंथैल्पी, वो एग्जैक्टली करेक्ट तो नहीं था. ठीक है, बिकॉज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो कि एंडोथर्मिक होना था, अब हम ये देखते हैं कि एंडोथर्मिक कोई ऐसा प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस भी है. So this concept of enthalpy and spontaneity turned out to be wrong. It was insufficient to explain spontaneity. फिर हमने सोचा, अगर एंथैल्पी नहीं तो और ऐसी कौन सी चीज है जो हमें स्पॉन्टेनिटी समझा सकती है, एंड दैट्स वेयर वी लुक्ड अपॉन एंट्रोपी. ओके, यहां पर हमने एंट्रोपी को देखा, बट पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज entropy. So there we are. Entropy is basically that thermodynamic quantity, students. Entropy जो है वो thermodynamic quantity है जो randomness यानी कि disorder को define करती है. Now in front of me I've got 3 different states, that is solid, liquid and gas. यहां पर we are very clear about the fact कि जो solid है वो सबसे ज्यादा ordered है, और सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड यहां पर क्या है, वो है गैस. तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी कहां पर होगी, सबसे ज्यादा डिसऑर्डर कहां पर होगा, वो गैस में होगा. सो व्हाट इज एंट्रोपी? इट्स बेसिकली दैट thermodynamic property which measures molecular randomness or disorder in the system, that is called as entropy. Mathematically हम entropy को define करते हैं as heat, reversible heat upon टेम्परेचर. नेचुरली एंट्रोपी का जो यूनिट होगा वो होगा जूल पर केल्विन. ओके, इट विल बी जूल पर केल्विन. ये एक स्टेट फंक्शन है, हम जानते हैं. पाथ फंक्शन तो ये हो नहीं सकता. थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ 2 पाथ फंक्शन होते हैं, दैट इज वर्क एंड हीट. हमने पहले भी इसके बारे में बात की हुई है. ओके, सो गैसेस, बिकॉज दे आर सो रैंडम, the molecules are just moving about here and there. Due to that randomness, we say that gases have maximum entropy. तो हमने देखा what is entropy. Now we can also predict whether the entropy is increasing or decreasing. Okay, so let's just take a look at the entropy of these following reactions.
अगर आपके पास I2 है सॉलिड जो एक्वस बन रहा है, solid getting converted into aqueous, it is spreading out into the solution, तो यहां पर हम कहेंगे डेल्टा S इज पॉजिटिव यानी कि एंट्रोपी बढ़ रही है. ओके, S यानी कि एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग यानी कि डेल्टा S इज पॉजिटिव, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग. अगर मान लीजिए रिएक्शन इस तरह से है, हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2H, दैट मींस एक मॉलिक्यूल टूट के एटम्स हमको दे रहे हैं, राइट? इन दैट केस अगेन आप देख रहे हो एक का दो हो रहा है, दैट मींस एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा S is going to be positive here. Let's take a look at the next reaction. We have calcium carbonate getting converted into calcium oxide and carbon dioxide is being given out here. यहां पर आप देख सकते हो सॉलिड से गैस प्रोड्यूस हो रही है, डेफिनेटली एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, डेल्टा S is going to be positive. Let's take a look at the next reaction here. We have hydrogen and oxygen giving water, जो दो गैसेस थे, इनफैक्ट 3 moles ऑफ गैसेस जो थे, दैट इज नाउ गिविंग अस 1 mole ऑफ लिक्विड, यानी कि मोल्स के टर्म्स में भी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है एंड स्टेट्स के टर्म्स में भी गैस इज गिविंग अस लिक्विड, तो यहां पर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, यानी कि डेल्टा S इन दिस केस इज गोइंग टू बी नेगेटिव. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट. चलिए, let's try and figure out whether entropy increases or decreases in the following processes. इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पर एंट्रोपी कम होगी या ज्यादा होगी? सबसे पहले आता है फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड. लिक्विड getting converted into solid. Just think about it, students. Liquid getting converted into solid. Yes, of course, entropy यहां पर कम होने वाली है. लिक्विड यानी कि more disordered एंड सॉलिड यानी कि ऑर्डर्ड, तो डिसऑर्डर यहां पर कम हो रहा है, चीजें ज्यादा ऑर्डर्ड हो रही हैं, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग. सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड यानी कि सॉलिड डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, यहां पर ऑफ कोर्स डिसऑर्डर, एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, सो एंट्रोपी विल इंक्रीज हियर. डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ऑफ कोर्स शुगर को वाटर में अगर डिसॉल्व करोगे तो वो स्प्रेड आउट हो जाएगा एंड हियर एंट्रोपी विल increase. Condensation of vapor यानी कि vapor giving liquid, vapor giving us liquid, gas से liquid, disorder से comparatively more order, यानी कि यहां पर एंट्रोपी जो है ये कम होने वाली है, एंट्रोपी is going to decrease. I hope this concept is clear to all of you. एक और चीज हम यहां पर देख सकते हैं, we can predict कि इनमें से कौन से स्पीशीज में कम या ज्यादा एंट्रोपी है. For example, if you compare solid carbon dioxide and gaseous carbon dioxide, it is evident that gaseous carbon dioxide has greater entropy since it is a gas. Okay? आगे के जो questions आएंगे वो भी आप predict कर सकते हैं. You have NO, that is nitrogen oxide, and you have N2O4. You have more number of atoms over here, N2O4, so there is a greater chance of disorder. Okay? Next question, we have CH3OH, that is methanol, along with C2H5O, C2H5, that is diethyl ether. Okay? दोनों ही लिक्विड हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ईथर में ज्यादा एटम्स हैं और इसीलिए वो ज्यादा डिसऑर्डर्ड भी है. नेक्स्ट, सोडियम एंड NaCl, ऑफ कोर्स यहां पर NaCl जो है, यहां पर सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, तो कंपैरेटिवली ज्यादा डिसऑर्डर है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम. अब यहां पर हमारे जानने के लिए यह चीज जरूरी है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पॉन्टेनिटी. वी शुड नो. टिल नाउ वी थॉट दैट एंथैल्पी इज द थिंग विच डिफाइंस स्पॉन्टेनिटी. हर वो चीज जो कि, हर वो प्रोसेस जो कि एक्सोथर्मिक है वो स्पॉन्टेनियस होगा, हर वो प्रोसेस है जो कि एंडोथर्मिक है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. ऐसा हमने सोचा था, बट वी वर प्रूवन रॉन्ग. हमने देखा था कि अगर वार्म क्लाइमेट लेते हैं तो वार्म क्लाइमेट में एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था जो अपने आप हो रहा था. एंड देन वी थॉट अबाउट इट. हमें ऐसा लगा कि क्यों ना एंट्रोपी को एक बार ट्राई किया जाए. आफ्टर ऑल, आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, सॉलिड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. थिंग्स आर बिकमिंग मोर डिसऑर्डर्ड हियर. चीजें यहां पर बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो रही हैं और हमारे यूनिवर्स की एक
टेंडेंसी है, कोई भी चीज जो कि ज्यादा डिसऑर्डर्ड होती है उसे ज्यादा फेवर किया जाता है. थिंग्स विच मिक्स, they cannot be unmixed. For example, in other words, things will always mix and spread out. They will never unmix. For example, this milk in this coffee will spread out until a point where it is evenly spread, it's evenly mixed, and now it cannot be unmixed. तो देखा आपने कैसे बिकॉज ऑफ एंट्रोपी हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स की एक टेंडेंसी है थिंग्स हैव टू बी मोर डिसऑर्डर्ड, राइट? यहां पर भी तो वही हो रहा है, चीजें ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो रही हैं, तो शायद एंथैल्पी कुड नॉट एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी, मे बी एंट्रोपी कैन एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी. हमें ऐसा लगा कि हर वो चीज, हर वो सिस्टम जो ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो रहा है, जहां पर एंट्रोपी बढ़ रही है, दैट इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस. वो प्रोसेस अपने आप हो जाएगा जहां पर भी डिसऑर्डर बढ़ना चाहता है, जहां पर भी एंट्रोपी बढ़ने वाली है. आफ्टर ऑल यहां पर भी यही हो रहा था. बट देन यहीं पर एक और काउंटर एग्जांपल आ जाता है. फॉर इंस्टेंस, इफ यू कंसिडर कोल्ड क्लाइमेट, in cold climate this same water will get converted into ice. Water will lose its energy and it will become more ordered. It will get converted into ice. यहां पर अगर आप देखोगे ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, बट यहां पर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है. एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग. तो दिस इज अगेन काउंटर इंट्यूटिव. पहले तो हम ये सोच रहे थे कि जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. फिर हमने सोचा कि हर वो प्रोसेस जहां पर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाएगी शायद वो स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन ऐसा भी तो नहीं हो रहा है. एंट्रोपी कम हो रही है, डिसऑर्डर कम हो रहा है, थिंग्स आर बिकमिंग मोर ऑर्डर्ड, बट स्टिल दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. यानी कि ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. Now, since enthalpy and entropy cannot explain spontaneity alone, हम ऐसा कह सकते हैं, we can say that enthalpy and entropy of the system are individually insufficient to explain spontaneity of a reaction. किसी भी रिएक्शन की या प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन करने के लिए एंथैल्पी और एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंडिविजुअली इनसफिशिएंट है. तो शायद हमें एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम के जगह, इंस्टेड ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, वी नीड टू कंसिडर एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स. एंड मे बी दिस इज वेयर वी वर गोइंग रॉन्ग. वी वर कंसिडरिंग एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. सिस्टम का डिसऑर्डर हम देख रहे थे, लेकिन शायद हमें सिर्फ सिस्टम का डिसऑर्डर नहीं देखना था, हमें टोटल यूनिवर्स का डिसऑर्डर देखना था. I'll give you a very simple example here. Your room, okay, it's in a very high state of entropy. बहुत ज्यादा disordered है, बहुत गंदा है, कोई चीज, कोई सामान कहीं का कहीं रखा हुआ है, कपड़े फैले हुए हैं, बुक्स पड़े हुए हैं. So your room is highly disordered. और आप चाहते हो कि आप अपना रूम साफ कर लो. कम से कम शायद आप ना चाहते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स जरूर ये चाहते होंगे कि आप अपना रूम साफ रखो. तो आप क्या करते हो? एक दिन स्लीव्स चढ़ाते हो, मेहनत करते हो और वो रूम को एकदम ऑर्डर्ड बना देते हो. नाउ यू विल से दैट सर, माय रूम इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. माय रूम हैज बिकम ऑर्डर्ड. मेरा रूम ऑर्डर्ड हो गया है, मैंने यूनिवर्स की एंट्रोपी कम कर दी है. बट एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू. आपका रूम साफ करने के लिए आपको वर्क करना पड़ा, जिसके लिए आपको एनर्जी चाहिए थी. वो एनर्जी कहां से आई? फ्रॉम योर फूड. एवरीथिंग दैट यू हैव ईटन, राइट? आपके खाने में जितने कार्बोहाइड्रेट्स थे, those carbohydrates got converted, they got broken down into multiple simple molecules like glucose, and every molecule of glucose gives 38 net ATP, that is adenosine triphosphate. यानी कि रूम की एंट्रोपी भले ही कम हो गई है, लेकिन आपके वजह से
यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाती है. द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स increases because of you. But don't use that as an excuse to not clean your room. Okay. Now, this can also be illustrated with the help of second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics जो है, it is a fundamental law of our universe, और वो ये कहता है कि the total entropy of the universe, that is the system and the surrounding, it increases in a spontaneous process, in any spontaneous process. ऐसा process जो खुद से हो सकता है, the total entropy of the universe must increase. All right, this is the second law of thermodynamics. Now there are some alternate definitions. कुछ alternate definitions है जो आपको पता होने चाहिए, and all these definitions are different forms of the second law of thermodynamics. Okay, they are all very simple and you will understand all of them. One important thing to note here is that हमारे पहले वीडियो में, in the first video, we had spoken about how we can predict with the second law of thermodynamics that one day, after billions and billions and billions of years, our universe will come to an end. इस बारे में हमने बात की थी. Now, what happens is, in the universe, there are so many different stars. इतने सारे stars हैं हमारे universe में, and just so that you know, there are more stars in the universe than grains of sand. रेत के दानों से ज्यादा आसमान में सितारे हैं. ठीक है. There are not enough grains of sand on this planet than there are the number of stars in the universe. Okay, according to some estimates. अब इतने सारे stars हैं. ये जो stars होते हैं, ये हमेशा के लिए तो नहीं चमकते रहेंगे. They have a shelf life. They have a fuel inside them. And with the burning of that fuel, which is kind of, what I'm referring to, and with the burning of that fuel, आप burning कह सकते हैं या smashing कह सकते हैं, also called as nuclear fusion, energy is released. Every star has limited amount of fuel. Okay? जब एक ऐसा point आएगा जब यूनिवर्स का हर एक स्टार अपना फ्यूल कंज्यूम कर लेगा, सारे यूनिवर्स का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी. तो जिस तरह से वो कॉफी मिक्स हो गई थी, उस तरह से हमारे यूनिवर्स के अंदर सारा हीट मिक्स हो जाएगा. द एंटायर यूनिवर्स विल बी एट द सेम टेम्परेचर. सो व्हाई विल एनीथिंग हैपन? कोई भी चीज होने के लिए कुछ एनर्जी में डिफरेंस होना जरूरी है. Right? So when there is no difference of energy, when there is no difference of temperature, nothing will happen. And that's exactly how our universe will end. It is called as heat death of the universe. आप इसके ऊपर कुछ सर्च भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर मिलेंगे. All right. Since we were talking about the second law of thermodynamics, we now have to deal with the total entropy of the universe. We are not going to deal with entropy change of the system. We are now going to see total entropy change. Now the total entropy change can be calculated by adding the entropy change of the system and the surrounding. I think that's very simple. System ka entropy change dekhiye, surrounding ka entropy change dekhiye, and accordingly just add them up. You will get the total entropy change of the universe. Yahan par agar hum baat kare, at constant temperature and pressure, we know that heat gained by the surrounding is nothing but heat lost by the system. Heat gained by the surrounding is heat lost by the system, और इसको मैं negative delta H of the system के साथ represent कर सकता हूं. I hope this is clear to all of you. यहां पर मैं दो concept reiterate करना चाहूंगा. First, we are talking about constant pressure. Constant pressure पे any change of heat is basically change in enthalpy. Okay, हमने enthalpy में ये देखा था. Enthalpy define करते वक्त हमने देखा था. Enthalpy is defined as the change of heat, the exchange of heat at constant pressure. The second thing, I want you to take a look at the sign here. यानी कि
जो QP सराउंडिंग है वहां पर अगर हीट गेन हो रही है तो यानी कि सिस्टम में से वो हीट का लॉस हो रहा है. हीट गेन्ड बाय द सराउंडिंग इज हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम. इसीलिए यहां पर साइन भी चेंज हो रहा है और यहां पर नेगेटिव साइन हम लेके आ रहे हैं. Okay, because these signs are the opposite of each other. But since entropy change is defined as the change of heat, the exchange of heat divided by temperature, we can also say that entropy change of the surrounding is nothing but heat exchanged with the surrounding divided by temperature. But we have just seen कि जो भी heat exchange होता है surrounding के साथ, it is nothing but the opposite heat exchange with the system. तो उसको हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं and this is what we will get. यही एक्सप्रेशन को अगर हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दें तो इस तरह से हमको इक्वेशन मिलती है. यानी कि सिस्टम का ही एंथैल्पी चेंज, सिस्टम का टेम्परेचर, इन सब चीजों से हम टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. अक्सर मुझे ये पूछा जाता है कि सर व्हाई डू वी नीड दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की जरूरत क्या है? हमारे पास एक ऊपर फॉर्मूला था, हम डायरेक्टली वहां से निकाल सकते थे एंट्रोपी चेंज, राइट? एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स वी कुड हैव कैलकुलेटेड, बट my dear students, we can easily calculate entropy change of the system. How do we calculate entropy change of the surrounding? It's very difficult. तो वो सराउंडिंग वाले टर्म्स को हमने सिस्टम वाले टर्म्स में कन्वर्ट किया है, ऐसी चीजों में कन्वर्ट किया है जिनको हम मेजर कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ एन ऑल्टरनेट वे, ये तो एक तरीका हो गया. आप यूनिवर्स की एंट्रोपी को देखो. अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. देयर इज एन ऑल्टरनेट मेथड. यू कैन यूज एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कंबाइंड. ओके, अब तक हम क्या कर रहे थे? हम देख रहे थे एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंडिविजुअली, लेकिन अगर हम उनको कंबाइन कर दें तो हम यहां पर स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ओके, और इस चीज में हमारी मदद करता है गिब्स फ्री एनर्जी. ऑलराइट, गिब्स फ्री एनर्जी इज दैट थिंग, इज दैट क्वांटिटी which helps us predict the spontaneity. Of course, total entropy भी एक चीज है जो हमको spontaneity predict करने में help करती है. अगर total entropy बढ़ रही है तो वो process spontaneous होता है. Along with that, Gibbs free energy change भी एक ऐसी quantity है जो हमको help करती है spontaneity predict करने में. So let's first understand what is Gibbs free energy. Okay, it is the free energy of the system used to do useful work. Now this definition might be a little misleading. शायद आप में से कुछ लोगों को ये definition ना समझ में आए. So let me give you an example so that you can understand what is the true meaning of Gibbs free energy, and not only the Gibbs free energy but also entropy. Okay, what happens is many a times I ask students what is entropy and they say sir it is randomness. Very good, what do you mean? और वहां पर वो स्टूडेंट्स अटक जाते हैं. सो दे आर नॉट एबल टू आंसर एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय दैट रैंडमनेस. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल व्हिच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कोरिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी. ओके, लेट अस कंसिडर एन इंजन लाइक दिस. You have a cylinder and piston arrangement. What I am going to do is I am going to give 100 joules of energy to this piston. Okay, इस piston में मैं 100 joules of energy देने वाला हूं ताकि इस गैस को compress कर सके. So there we have the gas getting compressed. Okay, now my question to you is, क्या ये 100 का 100 joules actual compression में गया है? Of course, the answer will be no. ये पूरा 100 का 100 जूल कंप्रेशन में यूज नहीं हुआ है, बिकॉज यहां पर अगर आप देखोगे तो वी हैव सम रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जिसके वजह से कुछ हीट लॉसेस हो गए हैं. यहां पिस्टन और सिलेंडर के बीच में प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कुछ फ्रिक्शन होती है और वो फ्रिक्शन में भी कुछ हीट लॉसेस हो जाएंगे. तो अगर कुछ एनर्जी, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी हैज गॉन अवे to overcome these forces, तो let us say 10 joules का यहां पर लॉस हुआ है और बाकी का जो 90 joules है वो एक्चुअल कंप्रेशन में यूज हुआ है.
तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जो 90 जूल्स है जो एक्चुअल यूजफुल कंप्रेशन में काम आया है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी. Okay, that is the energy that gets consumed in useful work. तो आप कहोगे सर ये तो गिब्स फ्री एनर्जी हो गया. दैट पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी दैट गेट्स यूज्ड इन यूजफुल वर्क. व्हाट अबाउट एंट्रोपी? सो जस्ट थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स. यहां पर एंट्रोपी कौन रिप्रेजेंट करता है? Of course, entropy is represented by 10 joules. वो क्वांटिटी जो अब चली गई है, रैंडमनेस में चली गई है, यूनिवर्स के अंदर हमें वापस मिलने वाली नहीं है. Okay, so I can say that 90 joules, that is the Gibbs free energy. Okay, it is nothing but the total energy minus losses. ये losses को कौन represent करता है? Entropy. Okay, तो अगर आपसे कोई पूछे what is entropy? It is randomness. What do you mean? तब आपका आंसर होना चाहिए it is that part of the total energy which is wasted into the universe. Losses में चला जाता है, हमें वो यूजफुल वर्क करने में नहीं मिलता है. That is the correct answer of entropy. Anyway, अब इस चीज को अगर मैं मैथमेटिकली इक्वेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो आई कैन से डेल्टा G is nothing but the total energy given, that is delta H minus T delta S. एंट्रोपी को ये यहां पर रिप्रेजेंट करता है. अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया है कि यहां पर हमने टेम्परेचर को क्यों लिया, सीधे सीधे हम एंट्रोपी को भी ले सकते थे, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड गिब्स फ्री एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल्स. डेल्टा एच का भी जो यूनिट होता है वो आपको पता ही है, एंथैल्पी का यूनिट होता है जूल्स. और यहां पर एंट्रोपी का जो यूनिट होता है दैट इज जूल पर केल्विन. तो अगर ये जूल पर केल्विन रहे और अगर आप उसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि एक एक्स्ट्रा केल्विन को यहां पर ले आए, तो केल्विन एंड पर केल्विन विल गेट कैंसल्ड एंड योर इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड. Okay, that's the easiest way to understand why do we take T delta S here. I hope this concept is clear to all of you. All right, yahan tak I am going to cover in the part 1 of spontaneity. In the next video we are going to cover part 2 of spontaneity. yahi se hum apna discussion continue karenge. So come on, see you in the next video. Thank you for watching. Do like, share, comment and subscribe to Target Publications on YouTube. Thank you.